مسیحا کے جلالی اور افضل ترین نام میں آج شب میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں اور ہم خدمت ساتھیوں کی خدمت میں آج رات آداب بجا لاتا ہوں اور اپنے خداوند کا انتہائی ممنون ہوں کہ اس کی پاک اور مقدس مرضی کے مطابق ہمیں آج پھر سے یہ خوبصورت اور سندر لمحات فراہم ہوئے کہ ہم اس خوبصورت پرستش کے وسیلہ سے برکت پانے کے ساتھ ساتھ اس کے زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے بھی برکت پائیں۔ میں آپ سبوں کی توجہ کے لیے بھی اور ہمارے ساتھ آن لائن ہونے کے لیے بھی، خواہ آپ سکائپ آئی ڈی پر ہیں یا ہمارے ساتھ فیس بک پر لائیو شریک ہیں یا ہمارے واٹس ایپ گروپس میں خداوند کے کلام کو سیکھتے ہیں، آپ کے لیے دل سے دعا ہے کہ خداوند آپ کو اس تاریک اور بے رنگ و بو معاشرے میں اپنے جلال کے لیے نمک و نور بنا کر استعمال کرے اور انجیل کی اس خوشبو کو دنیا کے کونے کونے اور کریا کریا تک پہنچانے کا ہمیں وسیلہ ٹھہرائے۔ یقیناً یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آج آپ کی خدمت میں کلام مقدس میں سے جو ہماری بالترتیب بائبل سٹڈی ہے اور مختلف خدا کے عظیم خدام اس بائبل سٹڈی میں اپنی اپنی ذمہ داری کو بطور احسن سر انجام دیتے ہیں، انہی کے ساتھ کڑی سے کڑی ملاتے ہوئے آج جو مجھے خداوند نے ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو نبھانا اپنے لیے اعزاز اور باعث شرف سمجھتا ہوں۔ اور آج میں سلاطین کی دوسری کتاب اور اس کے 4 باب اور اس کی 30 آیت سے لے کر 37 آیت تک، یعنی ان 8 آیات پر مختصر طور پر روشنی ڈالوں گا، 30 سے 37 تک، اور کتاب مقدس میں سے اس حوالے کو آپ کے لیے تلاوت کیے دیتا ہوں۔ لکھا ہے، اس لڑکے کی ماں نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ تب وہ اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلا اور جہازی نے ان سے پہلے آ کر عصا کو اس لڑکے کے منہ پر رکھا، پر نہ تو کچھ آواز ہوئی نہ سننا۔ اس لیے وہ اس سے ملنے کو لوٹا اور اسے بتایا کہ لڑکا نہیں جاگا۔ جب الیشا اس گھر میں آیا تو دیکھو وہ لڑکا مرا ہوا اس کے پلنگ پر پڑا تھا، اس کے پلنگ پر یعنی الیشا کے۔ سو وہ اکیلا اندر گیا اور دروازہ بند کر کے خداوند سے دعا کی اور اوپر چڑھ کر اس بچے پر لیٹ گیا اور اس کے منہ پر اپنا منہ اور اس کی آنکھوں پر اپنی آنکھیں اور اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے اور اس کے اوپر پسر گیا۔ تب اس بچے کا جسم گرم ہونے لگا۔ پھر وہ اٹھ کر اس گھر میں ایک بار ٹہلا اور اوپر چڑھ کر اس بچے کے اوپر پسر گیا، اور وہ بچہ 7 بار چھینکا اور بچے نے آنکھیں کھول دیں۔ تب اس نے جہازی کو بلا کر کہا، اس شونیمی عورت کو بلا لے۔ سو اس نے اسے بلایا، اور جب وہ اس کے پاس آئی تو اس نے اس سے کہا، اپنے بیٹے کو اٹھا لے۔ تب وہ اندر جا کر اس کے قدموں پر گری اور زمین پر سرنگوں ہو گئی۔
फिर अपने बेटे को उठाकर बाहर चली गई। दुआ है कि खुदावन इन आयात से हासिल शुदा सबक को हमें अपनाने का फजल दे और कोई ऐसी बात या बातें मुझसे करे और आपसे करे जो हमारी जिंदगी के लिए सबक हूं, और आज का हमारा ये ऑनलाइन होना वक्त का ज़िया ना हो, बल्कि हम कुछ बटोर कर उसके हुजूर से जाने वाले हों। कलाम में खुदावंद कहता है, अपना मुंह खोल तो मैं इसे बरकतों से भर दूंगा, और वो आज चाहता है कि अपनी बरकत से हमें नवाजे। शुनीमी औरत के ताल्लुक से इससे पेशतर हम खुदावंद के खादम भाई कमर वारिस के वसीला से काफी कुछ सीख चुके हैं। उलमाए बाइबल का भी ख्याल है, और इसके ताल्लुक से जितनी बातें किताबे मुकद्दस में हमें मिलती हैं, उनसे हमें यह हकीकत आश्कारा होती हुई नजर आती है रोजे रोशन की तरह कि यह खातून कोई मामूली खातून नहीं थी। इसके पास काफी मालो मता और दौलतमंद खातून थी। फिजिकली बात कर रहा हूं, और शोहर भी था, लेकिन बे औलाद थी। एक वक्त ऐसा आया कि जब मर्दे खुदा अलीशा इस तरफ आता शुनीम में, ताकि वो यहां पर आकर खिदमत गुजारी का काम करे, तो वो इस खानदान में जरूर आता था, इवन रहता था। और इस खातून ने अपने शोहर से कहा, साहब जी, ये साहब जी वाले अल्फाज आयतों में नहीं लिखे हुए, समझने के लिए बात कर रहा हूं, पस मंजर बयान कर रहा हूं कि ये बंदा जो हमारे घर आता है, खुदा का खादिम, ये लगता है कि कोई मामूली शख्सियत नहीं है। इसके वसीला से हमें काफी बरकत मिली है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हमारे घर के ऊपर जो दीवार है, वहां साथ एक छोटा कमरा बनाए, और यह कमरा स्पेसिफिकली इस खुदा के खादम नबी के लिए हो, ताकि जब भी कभी उसका इधर आना हो तो उस कमरे में वो रहे। बेड भी हो, एक मेज भी हो, टेबल लैंप भी हो, ताकि वो अपना वक्त यहां पर गुजारे और आराम करे। उसके शोहर ने यह बात मानी और ऐसा ही किया। लेकिन अलीशा जान गया कि इनके यहां औलाद नहीं है, और फिर अलीशा ने खुदा के रूह की हदायत से कहा कि अब वक्ते मुकर्ररा पर आइंदा खुदा तुझसे एक बेटा देगा। और वक्ते मुकर्ररा पर खुदा का काम नबी के वादा के मुताबिक हुआ। यह बच्चा बड़ा हुआ, खेतों में अपनी मां बाप के साथ गया और बीमार हो गया। अपने बाप को कहने लगा, हाय मेरा सर, मेरा सर, यानी उसको हेडेक हुई। मालूम नहीं क्या वजह है। इट्स पॉसिबल को उसको हीट स्ट्रोक हुई हो, मुमकिन है। ये बाइबल की बात नहीं है, ख्याल है, और आलमों का भी ख्याल है। बाप ने कहा कि भाई इसको उधर इसकी मां के पास भेजो, जो कुछ भी है।
क्योंकि जड़े कम मावा कर सकदियां ने और पापे नहीं कर सकते। और मां जिस तौर पर अपने बच्चे का ख्याल रख सकती है, पापा नहीं रख सकता। बहुत सारे पापे रखते हैं, लेकिन जिस तौर पर मां नीम शब को भी और सहरी के वक्त भी बच्चा साइड पलटे और मां ना जागे, ये हो नहीं सकता कि मेरे लाल को क्या हुआ। और मैं सोचता हूं मां को ये एक गिफ्ट मिला है, केयरिंग एंड लविंग का। और जिस सबब से मां ने उस बच्चे को लिया, लेकिन हुआ ये कि उसकी गोद में ही गोया उस बच्चे का सांस निकल गया, दम निकल गया, मर गया। अब क्या किया जाए? उसने अपनी सवारी तैयार की और कहा, उसके दिल में यही था कि वही मर्द खुदा जिसने कहा था कि तुझे बेबी मिलेगा, मिला तो है। लेकिन अब वो जो बेबी है मेरे पास नहीं है। मैं वापस उसी मर्द खुदा के पास जाऊंगी और उससे बात करूंगी। वो गई और अलीशा ने कोहे कर्मल में जब मुतालिया कर रहा था तो शुमाली इसराइल में ये शोनीम का इलाका पाया जाता था। आजकल सुनम का लफ्ज इस्तेमाल होता है नाम यजराइल के पास, और साथ ही ऊपर करमल का इलाका भी है, कोहे करमल। और आप जानते हैं एलिया भी और अलीशा का भी ज्यादातर खिदमत गुजारी का वक्त कोहे करमल पर गुजरा। वहां पर शायद ऊंचे मकाम पर खुदा के हुजूर वो दस्ते दुआ बुलंद करते अलहदगी में और खुदा से बातें किया करते थे, रियाजत में दुआ में ठहरा करते और उसकी मर्जी को जाना करते थे। चुनाचे ये खातून वहां पहुंचती है। अलीशा का खादिम पूछता है, जिहाजी, हाँ जी क्या बात है? अलीशा ने पूछवा भेजा, खैरियत तो है? इस खातून ने कहा, हाँ सब कुछ खैरियत है। क्यों वो नहीं बताना चाहती थी? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेरी बात नबी तक इनडायरेक्ट तरीके से पहुंचे। मैं चाहती हूं मैं डायरेक्ट बिलवास्ता अलीशा से जाकर बात करूं कि क्या हुआ। अलीशा ने अपने खादम जिहाजी को भेजा, अपना असा, अपना अख्तियार देकर कि तुम जाओ इस खातून के साथ और उस बच्चे के मुंह पर असा रखो और देखो क्या होता है। वो जिहाजी तो आया, लेकिन ये खातून वहां से नहीं निकली। उसने कहा, ना 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 ना, आसा और जिहाजी ठीक है, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, यानी मैं तुझे साथ लेकर जाऊंगी। आज तुझे मेरे साथ जाना जरूर है। और फिर क्या हुआ? उधर रास्ते में जिहाजी मिलता है और कहता है, मैंने उसके मुंह पर असा वसा रखा, लेकिन कुछ नहीं बना। ना तो मुझे वो कोई जागा हुआ नजर आया, ना कोई सुनना नजर आया। अलीशा ने कहा, नो प्रॉब्लम। और वो रास्ते में मिले। अलीशा और वो खातून आ रहे थे और इस खातून ने उस मुर्दा बच्चे को कहां रखा था? उसी अलीशा के कमरे में जो ऊपर छत के ऊपर इन्होंने बनाया हुआ था, उसके बेड पर उसको लेटा दिया था।
इसलिए नहीं कि एलीशा आएगा तो इसके बाद इसको कब्रिस्तान लेकर जाएंगे। नो, खातून श्योर थी कि हमारी खिदमत रायगान नहीं जाएगी और खुदा अपने बंदा के वसीला से इस बच्चे को फिर से जिंदगी लौटा देगा और ये बच्चा हमारे हाथों में होगा। ईमान देखिए कितना बड़ा ईमान इस खातून का था। वो खुद गई भी, जिहाजी और आसा आए, लेकिन इसने कहा ना 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 ना। अलीशा ने कहा जाओ, इसने कहा ना 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 ना। ये मुसलसल अलीशा के पीछे पड़ी रही कि तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। ओ मेरे अजीजों, यहां पर एक पॉइंट मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही खूबसूरत निकलता है, वो ये कि मुसलसल की जाने वाली दुआ, मैं इस पॉइंट को वहां से निकाल रहा हूं। ये खातून मुसलसल अलीशा से कहती रही तुम चलो, और मुसलसल खुदा के हुजूर की जाने वाली दुआ का जवाब जल्द या बदेर जरूर मिलता है। बी श्योर, खुदा जरूर उस दुआ का जवाब देता है। खा आप किसी की भी किताब मुकद्दस से मिसाल ले लें, उस खातून की बाबत क्या ख्याल है जिसको 12 बरस से कोई खवातीन की प्रॉब्लम थी और वो ठीक नहीं हो रही थी, और उसने कहा मैं सिर्फ उसकी पोशाक का किनारा ही छू लूं तो शिफा पा जाऊंगी। बहुत बड़ी बात है। उस बेवा के बारे में क्या ख्याल है जो बे इंसाफ काजी के दरवाजे पर मुसलसल ठक 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 करती रही जब तक बे इंसाफ काजी ने उसको जवाब नहीं दिया। जकाई के बारे में क्या ख्याल है? उसने कहा आज मैं यीशु को देखूं ही देखूं कि वो कौन है। अंधे बरतमाई ने सुना कि यीशु की सवारी जा रही है, रह नहीं पाया, पुकार उठा यीशु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, वो दुआ जो मुसलसल हो और आंसुओं के साथ खुदा के हुजूर की जाए, यकीन रखिए खुदा उन दुआओं के जरूर जवाब बख्शता है, बशर्ते के ईमान के साथ इंतजार करें, क्योंकि खुदा के लोगों के दुआ में हर बहने वाले आंसू की खुदा कदर करता है और वो जरूर जवाब देता है। और आप देखते हैं बुजुर्ग अलीशा नबी और उसके भी उस्ताद जनाब एलिया नबी के वसीला से सेम मोजज़ात हुए, बल्कि अलीशा के जरिया उससे भी ज्यादा मोजज़ात हुए हैं। और यह सलातीन का दौर था जिस दौर में खुदा अपने इन अंबिया के वसीला से कौमों और उम्मतों और कबाइल पर जाहिर कर रहा था कि तुम और माबूदों को मानते हो, लेकिन मैं माबूद हकीकी हूं, मेरे पीछे आओ तो तुम्हारी बिगड़ी बन जाएगी। इन दोनों अंबिया के वसीला से बहुत सारे मोजज़ात हुए हैं और यहां इस शुनीमी औरत के बेटे के जिंदा किए जाने का मोजज़ा होता है। लेकिन एक बात यहां पर
हमें नजर आती है, और वो ये कि ये खातून अलीशा के बारे में जानती थी कि जब वो मेरे घर आएगा तो फिर क्या होगा। वो जानती थी। इवन इसके शोहर ने भी पूछा कि तू जा कहां रही है, लेकिन उसने इस बात को सीगाए राज में रखा, और लगता है अपने शोहर पर भी इस बात को जाहिर नहीं किया कि बेटा मर गया है। नो, वो गई डायरेक्ट अलीशा के पास उससे बात करने के लिए। लेकिन एक बात जो यहां हमें नजर आती है वो ये कि हो सकता है आप सोचते हो कि ये आसा के इस्तेमाल करने की क्या जरूरत पड़ी थी, या जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि जब अलीशा वहां पर पहुंचा, लड़का मरा हुआ पलंग पर पड़ा था और अलीशा ने दरवाजा बंद किया, और वो मुर्दा बच्चा और अलीशा वहां पर थे, और अलीशा ने अपने आप को इस बच्चे पर पसारा, लेट गया, उसके मुंह पर मुंह, आंखों पर आंखें, हाथों में हाथ रखे, और फिर यूं उसने वहां पर क्या दुआ की, क्या कहा, मुझे मालूम नहीं। आप कहेंगे ये कौन सा तरीका था मुर्दे के जिंदा करने का? भाई मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एलिया नबी ने भी बिल्कुल ऐसे ही सलातीन की पहली किताब के 17 बाब और उसकी 20 से 23 आयात को अगर आप पढ़ें तो देखेंगे ऐसे ही किया, बिल्कुल ऐसे ही किया। ऐसे ही एक मुर्दा बच्चे पर अपने आप को पसारा और वो जिंदा हुआ। एक क्लू मिलता है कि पॉसिबल है कि इसके उस बच्चे के ऊपर अपने आप को पसारने के वसीला से उस बच्चे का बदन, बॉडी गर्म हुआ हो, और खुदा का ये प्लान और मंसूबा हुआ हो कि यूं इस बच्चे की बॉडी गर्म होगी और मैं इसमें सांस डालूंगा। मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात यहां पर हमें नजर आती है इस बच्चे के बदन के गर्म होने की। और फिर जब इसने अपने आप को उस पर पसारा तो शायद हमारे जहन में यह बात भी आ रही है कि ये पसारने और आसा के इस्तेमाल करने की क्या जरूरत पड़ी थी। भाई अहदे अतीक में बहुत सारे मकामात पर ऐसा हुआ है। यस्सु ने मट्टी और थूक इस्तेमाल किया था, याद है आपको? और फिर पानी के मटकों को जो खाली थे लेकिन अब पानी से भरवाए। पानी से भरवाने की क्या जरूरत थी? बगैर पानी के नहीं कर सकता था वो मुआवजा, ऑफ कोर्स। लेकिन वो लोगों से फर्मा बरदारी भी चाहता है कि जो मैं कहता हूं वो करो, तो मौजूजा वहां है। और बाज औकात हम कुछ करना चाहते ही नहीं, हम चाहते हैं ना हिंग लगे ते ना फटकड़ी ते कम हो जावे। इंज नहीं हो सकता। लेकिन खुदा की हर एक बात में एक खास मर्जी है। हम सलातीन की इस दूसरी किताब के 3 बाब में इस 16वीं आयत से मैं ही आपके साथ शेयर कर रहा था कि कैसे वहां पर होज खोदने के लिए कहा गया था, खंदकें खोदने के लिए कहा गया था कि इस अदूम के इलाका में ये खंदकें खोदो, ना बादल होंगे, ना मींह होगा, ना बिजली चमकेगी, ना आंधी आएगी, लेकिन ये खंदकें पानी से भर जाएंगी। तुम्हें किसी तरह की परेशानी की जरूरत नहीं होगी।
ताकि तुम मोआबियों के खिलाफ जंग कर सको और तुम भी और तुम्हारे मवेशी भी खूब सैर होकर पानी पी सके। हम सलातीन की दूसरी किताब की पहली 7 आयात में एक गरीब कर्ज तले दबी हुई औरत जिसके पास कुछ नहीं था, उसके यहां उसको बर्तन जमा करने के लिए कहा गया। खुदा चाहता है कि कुछ हम भी करें मोजज़े के हुसूल के लिए, वो चाहता है, और फिर खुदा अपना काम करता है। लेकिन एक बात जो यहां हमें नजर आती है, अलीशा ने अपने उस्ताद की तरह ही किया इन आयात में। और उसके बाद लिखा है, जब इस बच्चे ने आंखें खोली तो अलीशा ने जिहाजी से कहा, जा और इस औरत को बुला ले आ ताकि वो अपने बच्चे को उठा ले। और जब इस खातून ने ये बात सुनी होगी कि तेरा बच्चा अब मरा हुआ नहीं, उसमें जिंदगी की लहर दौड़ आई है, अब तू दौड़ और अंदर जा और उस बच्चे को अपने हाथों पर उठा। और कितनी बड़ी खुशी की बात उसके लिए हुई होगी। और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, शायद इस स्काइप आईडी पर, हमारी फेसबुक पर बहुत सारे खुदा के खादम इस कलाम की बातों को सीख रहे हैं। मेरे साथ मिलकर मैं भी सीख रहा हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी भाई बहनें होंगे जिनकी जिंदगी में शायद बहुत सारी उनकी उम्मीदें मर चुकी हैं इस बच्चे की तरह, और उनके सामने कोई उम्मीद नहीं है। और जितना कुछ वो कर सकते थे उन्होंने कर लिया, लेकिन अब और कोई रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नजर नहीं आता कि अब हम करें तो क्या करें। उम्मीदें मर चुकी हैं, अंदर की जो ईमान के एतबार से जस्तजू थी वो मर चुकी है, दुआ करने की रूह मर चुकी है, सुस्ती और काहली, मायूसी और डिप्रेशन की बदरूह ने हमारे गले को दबोचा हुआ है कि हम खुदा के साथ बात नहीं कर पा रहे। हालात के देवताओं ने शायद हमें ऐसे शिकंजे में खींच रखा है कि हम बहालत परेशानी सोच नहीं पा रहे कि मैं करूं तो क्या करूं। हर रोज एटलीस्ट तीन ऐसे लोगों के फोन कॉल्स, ऑडियो मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं, कम अज कम 3 के, और उन तमाम के हालात नागुफ्ताबे होते हैं। और जब मेरे पास टाइम होता है, मैं उनके बिहाफ पर रखना में खड़ा होता हूं, उनका ईमान मेरी दुआ, और खुदा अपनी मर्जी के मुताबिक अपने लोगों की जिंदगी में काम करता है। मेरे भाई, मेरी बहन, ये बाइबल स्टडी सिर्फ एक स्टडी, एक फॉर्मेलिटी, एक रूटीन नहीं है। ये आज खुदा की तरफ से मेरे लिए और आपके लिए एक पैगाम है, ताजगी के लिए और अपनी उम्मीदों के बर लाने के लिए, और अपने अंदर जो एक मुर्दा पड़ा हुआ है उस मुर्दे को जगाने के लिए ये एक कुंजी है। कुंजी, इस कुंजी को इस्तेमाल करें, और वो ये कि खुदा के हुजूर मुसलसल इस खातून की तरह दुआ में लगे रहे और उससे कहें, खुदावंद मेरी जिंदगी में मोजज़ा कर, मेरी उम्मीदें अब जिंदा हो जाएं, मेरे अंदर का इंसान जो रूहानी है वो जिंदा हो जाए,
मेरी दुआ या जिंदगी जिंदा हो जाए, मेरा ईमान जिसका जनाजा उठ गया है अब ताजा हो जाए, ताकि मैं तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हूं। और मैं ईमान से कहता हूं, आज की ये बाइबल स्टडी आप में से बहुतेरों के ईमान को जिंदा करने का वसीला बन रही है और बनेगी भी। और फिर लिखा है, ये खातून जब अंदर गई तो इस मर्द खुदा के कदमों में झुक गई, एहतरामन और अकीदतन, कि ये खुदा का बंदा है। खुदा नहीं है लेकिन खुदा का बंदा है। और उसका झुकना गोया खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी थी और उसकी तारीफ थी, है खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि तूने इस खादम को इस्तेमाल किया और ये मेरे लिए तो एक फरिश्ता है जिसके वसीला से मेरा बेटा जी उठा और जाग गया है। और लिखा है, फिर वो सरनगू हुई और अपने बेटे को जो मुर्दा छोड़ा था जिंदा लेकर जा रही है। और मेरी दुआ है, ऐ खुदा, आज हमारी इस बाइबल स्टडी में जितने भी मेरे भाई, जितनी भी मेरी बहनें पूरी दुनिया से शरीक हैं, मैं उन तमाम के लिए दुआ करता हूं कि आज वो इस बाइबल स्टडी में शायद अपनी मुर्दा उम्मीदें जिनसे जान निकल चुकी है आए हैं। यस्सु के नाम से आज इनकी जिंदगियों में उन मुर्दा उम्मीदों को जिला बख्श, ताकि तेरा नाम हमारी शुक्रगुजारियों के वसीला से जलाल पाए। अजीजों, आप सबकी बड़ी तवज्जो के साथ कलाम मुकद्दस की इन अनमोल और खूबसूरत बातों को मेरे साथ मिलकर सीखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावन इस कलाम पाक पर मुझे और आपको अमल करने का गहरा एहसास और फजल बख्शे। गॉड ब्लेस यू।